آج ہم آپ کو کربلا کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر دل تڑپ اٹھے گا۔ کربلا کے میدان میں جہاں بنی ہاشم بہادری میں سب سے آگے تھے، جن کا ایک فرد پورے لشکر پر بھاری تھا، لیکن ایک شخص کی بات ہی کچھ اور تھی جس نے کئی یزیدیوں کو صرف اپنی آنکھوں سے مارا۔ سب کو بس اسی کا خوف تھا کہ اگر وہ میدان میں آ گیا تو کیا ہوگا۔ وہ اپنی بہادری کی وجہ سے پہچانا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی فوج کا علمبردار جو 300 کے لشکر کے لیے کافی تھا، وہ امام علی علیہ السلام کا بیٹا حضرت غازی عباس تھا۔ وہ فرات پر صرف ایک مشک پانی بھرنے آئے تھے، نہ کہ جنگ کرنے، لیکن اس کے باوجود بھی جو بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور حضرت عباس علیہ السلام پر حملہ کیا تو اس حملے کی دفاع میں حضرت عباس کے ہاتھوں 2415 یزیدی سپاہی مارے گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام نہر فرات کے کنارے 2415 یزیدیوں کو پیاس کی حالت میں مارتے رہے۔ آپ کے ہاتھ میں تھی تو حضرت عباس علیہ السلام نے مشک کو پانی میں ڈالا۔ آپ کے ارد گرد یزید کے سارے سپاہی آ گئے۔ شمر، جو کہ حضرت عباس علیہ السلام سے بہت دور کھڑا تھا، خوف کی نگاہوں سے حضرت عباس علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یزید کے سارے سپاہی حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے جانے کی جرت نہیں کر سکے۔ غازی عباس شیر کی طرح مشک نکال کر پانی بھرنے لگے۔ شمر اسی سوچ میں تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ شمر کو بھی وہ ساری باتیں یاد تھیں جو عمر بن سعد نے کہی تھیں کہ اگر تم اتنا خوف، اتنا ڈر رکھتے ہو ان کے کچھ سپاہیوں سے، پھر تم ہاشمی نوجوانوں کا کیا کرو گے جو حسین علیہ السلام کے خطرناک بازو ہیں؟ اگر عباس میدان میں آ جائے تو کیا کرو گے؟ یقیناً اگر عباس میدان میں آ جائے تو تم سب کے سب اسے دیکھ کر ہی مر جاؤ گے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے ہاتھ فرات کے پانی میں ڈالے اور خود پانی پینا چاہا۔ پانی اپنے چہرے کے قریب کیا تو وہ پانی پی نہ سکے۔ حضرت عباس علیہ السلام کو اپنی پیاس سے زیادہ بیوی سکینہ امام حسین علیہ السلام اور گھر والوں کی پیاس زیادہ عزیز تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے گھر والے پیاس سے رہیں اور میں سیراب ہو جاؤں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے وہ پانی واپس اسی فرات میں ڈال دیا اور مشک بھرنے لگے۔ اس وقت شمر نے حضرت عباس علیہ السلام سے کہا، عباس، کس چیز کو گھوم رہے ہو؟ فرات کے پانی کو یہ اتنی تاخیر کس کے لیے یاد رکھو کہ تم اس سرزمین کے بہترین سپاہیوں میں سے ایک ہو؟ آ جاؤ اور امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان نہ کرو۔ حضرت عباس علیہ السلام اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے تھے۔ جب مشک بھر لی تو حضرت عباس علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور واپس جانے لگے تو شمر ملعون نے کہا، نہ جاؤ عباس، رک جاؤ، موت کی طرف قدم نہ بڑھاؤ۔ جب شمر نے دیکھا کہ حضرت عباس علیہ السلام نے اس لالچ کو سویکار نہیں کیا تو وہ غصے میں لال ہو گیا اور یہ سمجھ گیا کہ حضرت عباس علیہ السلام پانی لے کر گئے تو وہ سفل ہو گئے اور انہیں سفل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ شمر کے کہنے پر حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے لشکر کے لشکر آ گئے اور حضرت عباس علیہ السلام کو روکنے لگے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے یہ لشکر کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کا مقصد ان سے جنگ کرنا نہیں تھا، بلکہ خیموں تک پانی پہنچانا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام ان سے مقابلہ کرنے لگے۔ جو بھی حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے آتا وہ 1 سیکنڈ میں ختم ہو جاتا۔ شمر یہ چلاتا رہا، کچھ بھی کرو مگر عباس پانی نہ لے کر جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عباس علیہ السلام بہت سے یزیدی سپاہیوں کو قتل کر کے فرات سے بہت دور آ گئے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے اور چاروں طرف بہت سے سپاہی آ گئے اور انہیں گھیر لیا۔ شمر یہ چلاتا رہا کہ جاؤ اور اس سے مشک چھین لو۔ حضرت عباس علیہ السلام دشمن سے مقابلہ کرتے رہے اور خیموں کی طرف نکلنے لگے۔ پھر کسی نے درخت کی اوٹ سے ایک زوردار تیر مارا جو حضرت عباس علیہ السلام کے بازو میں لگ گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے دوسرے ہاتھ میں تلوار لی اور مشک کو اپنے دانتوں میں پھنسا لیا اور دشمن سے مقابلہ جاری رکھا۔ اسی سمے درخت کی اوٹ میں سے ایک یزیدی سپاہی نے تیر سے آپ کے داہنے ہاتھ پر وار کیا۔ اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کے دونوں بازو کٹ گئے۔ اب آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے دانتوں میں مشک پکڑی اور تیزی سے خیموں کی طرف جانے لگے۔ ان کا ارادہ تھا کہ اگر کچھ بھی ہو جائے میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن یہ مشک خیموں تک پہنچ جائے،
इसी इरादे से वह खेमों की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन फिर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर एक जोरदार वार किया गया और आप करबला की जमीन पर गिर पड़े। मशक आपके हाथ से छूट गई और सारा पानी बह गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, मेरे पास तुम हो तो मुझे क्या गम? ये क्या हो गया कि मैं तुम्हें वापस नहीं पा सकता? किस तरह जाऊं अहले हरम के पास? अब मेरी कमर में ताकत नहीं रही। ये मेरे सब कुछ, ये मेरे भाई, ये थे वो गाजी अब्बास जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान कर दी। करबला के मैदान में हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खाली मशक लेकर खेमों की तरफ आने लगे तो बीवी सकीना सारे बच्चों को जमा करके मशकीजे को दूर से देखने लगी और फरमाने लगी, ए बच्चों, मैंने कहा था ना, मेरा चाचा अब्बास नहर से पानी लेकर आएगा। जैसे जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीब आने लगे, बीबी सकीना का तजस्सुस बढ़ने लगा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून से रंगीन देखा और मशक को खाली देखा तो बीबी सकीना रोकर फरमाने लगी, बाबा चाचा अब्बास कहाँ हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सकीना, तुम्हारा चाचा नहर के किनारे सो रहा है। बीबी सकीना ने कहा, बाबा मेरे असगर ने 3 दिन से पानी नहीं पिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीबी सकीना को देखा और फरमाया। सकीना एक खाली खेमे में अपनी बेटी सकीना को ले गए और जमीन पर हाथ रखा। जैसे ही हाथ उठाया तो जमीन से पानी उबलने लगा। बीबी सकीना पानी को देखकर खुश होने लगी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सकीना इस खेमे के बाहर निगाह करके देख। जब बीबी सकीना ने बाहर देखा तो बाहर लाखों लोग प्यासे थे जो बीबी सकीना को देख रहे थे। बीबी सकीना ने फरमाया, बाबा ये कौन है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ सकीना, यह तेरे नाना की उम्मत है। अगर आज तुम पानी पी लोगी तो रोजे महशर यह सब लोग हौजे कौसर से महरूम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे प्यासे रहने से ही अल्लाह के रसूल का दीन बचाएगा, तेरे नाना की नबूवत बचाएगी। बीबी सकीना ने कहा, बाबा मेरे नाना की उम्मत के लिए अगर इस सकीना को कुर्बान होना पड़े और ता कयामत अगर प्यासा भी रहना पड़े तो मुझे मंजूर है। मेरा भाई अली असगर अगर प्यास से तड़प तड़प कर मर जाए, मुझे यह भी मंजूर है। अल्लाह के दीन के लिए हम अहले बैत हर दुख सह लेंगे, सलाम हो। बीबी सकीना की प्यास पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साल की शहजादी सकीना के साथ जो जुल्म, ऐसा जुल्म किसी उम्मत के लोगों ने अपने नबी की नवासियों के साथ नहीं किया होगा। करबला से लेकर शाम तक कौन सा जुल्म था जो यजीदी फौज ने कीना के साथ ना किया हो। जब मैदान करबला में सब लोग शहीद हो गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले तन्हा रह गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम झुलजनाह पर सवार हुए और झुलजनाह की लगाम कई बार खींची, मगर झुलजनाह आगे ना बढ़ा। झुलजनाह सिर को झुकाकर अपने कदमों की तरफ देखने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम झुलजनाह से उतरे तो देखा कि बीवी सकीना झुलजनाह के कदमों से लिपट कर कह रही हैं, ए झुलजनाह, मेरे बाबा को ना लेकर जा। वो जो कोई भी घोड़े पर सवार होकर मैदान की तरफ गया है वो वापस नहीं आया। और अपने बाबा से लिपट कर रोने लगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिद्ध बीबी सकीना को ज़ैनब के हवाले किया। जब खेमों में आग लग गई तो सकीना रोते हुए खेमे से बाहर निकली और दौड़ती हुई मैदान करबला की तरफ गई। हर तरफ यजीदी लश्कर था। सिद्ध सकीना ने लोगों से पूछा कि मेरे बाबा कहाँ हैं। उनमें से एक जालिम ने पूछा कि तुम्हारे बाबा का नाम क्या है। जैसे ही बीबी सकीना ने कहा कि हुसैन, तो इस जालिम ने तीर को निकाला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मारते हुए फरमाया कि देख, ये तेरा बाबा है। बीबी सकीना दौड़ते हुए अपने बाबा की तरफ पहुंची और अपने बाबा की पर खंजर चलते हुए देख रही थी। 4 साल की बच्ची अपने बाप को करीब से जब होते हुए देख रही थी, शम्र मलाउन बीवी सकीना को छुरी दिखाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर मारने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जालिमों ने जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए और खेमों में आग लगा दी। मैदान करबला में अस्र के वक्त कुफियों के कुछ लुटेरों ने अहले बैत को एक खेमे में जमा करके बाकी खेमों को आग लगा दी। आग के शोले हो रहे थे और अहले रसूल के दिल डूब रहे थे। शैतान के साथियों ने माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सकीना के कानों की बालियां खींची गई। बीवी सकीना ने रोकना चाहा तो उसे थप्पड़ मारा। इससे बढ़कर जुल्म सितम और क्या होगा।
कितने बेहया थे वो हाथ जो हुसैन की बच्ची पर उठे, कितने बेगैरत थे वो हाथ जो अली की बेटी पर उठे। उमर बिन साद ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अब लूट घसोट को खत्म करो और यहां से चलो। खानदान अहले बैत के तमाम अफराद एक ही खेमे में बैठे हुए अपनी हालत झार पर रो रहे थे। इतने में ही शाम का वक्त हुआ। यजीदी अपने मदारों को दफन करने के बाद अपने पड़ाव में शाम के बाद जश्न मना रहे थे और खानदान ए रसूल की शहजादियां बीमार जीन अलाब्दीन के सराहाने बैठी अपनी हालत झार पर रो रही थीं। प्यास का एहसास ही खत्म हो चुका था। रात सर पर आ गई थी। बीवी सकीना फरियाद कर कर के इस तरह खामोश हो चुकी थी जैसे मौत की घोष में पहुंच चुकी हो। ज़ैनब कई बार जाकर अपने भाई का सिर चूमाती तो कभी खेमे में आकर बीमार जन अलाबद्दीन को देखती। रात आधी से ज्यादा ढल चुकी थी। अचानक बीबी ज़ैनब ने जो साए देखे तो बीबी ज़ैनब ने बुलंद आवाज से फरमाया, आगे मत आना, एक पर्दा नशी अपने भाई की लाश पर पहरा दे रही है। आवाज आई, बेटी हम गैर नहीं हैं, हम भी तेरा पहरा ही देखने आए हैं। बीवी ज़ैनब ने पहचान लिया कि यह तो मेरे बाबा अली की आवाज है। तसल्ली के लिए दोबारा आवाज दी, आप कौन हैं? पहले बताओ फिर आगे बढ़ना। आवाज आई, बेटी हम आगे नहीं आएंगे मेरे गमजदा बेटी, सब्र रखो, मैं तेरा बाप अली हूं और यह तेरी मां फातिमा बिनते रसूल हैं। हम तुम्हारा पहरा देखने के लिए आए हैं। बीवी ज़ैनब ने बेकरारी से आवाज दी, अम्मी जान। आवाज आई, जी बेटी क्या बात है बीबी? ज़ैनब कहने लगी, अम्मी जान आप रुक क्यों गई? आकर मेरे भाई का लाश तो देख लो, मुझे दिलासा तो दे जाओ। आवाज आई, बेटी मैं आगे नहीं आ सकती बीवी। ज़ैनब ने आवाज दी, अब्बा जान। आवाज आई, जी बेटी। बीवी ज़ैनब फरमाने लगी, अब्बा जान आप सुबह क्यों नहीं आए? जब आपका घराना लूट रहा था उस वक्त आप कहां थे? आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब अली असगर को तीर मारकर शहीद किया गया और अली असगर ने तीर खाकर दम तोड़ा? जब अली अकबर की लाश को उठाते वक्त मेरे भाई की कमर ढेरी हो रही थी, जब कासिम की जवानी लूटी गई, जब अब्बास के बाजू कलम किए गए, जब मेरे भाई का सर काटा गया। बाबा बाबा आपको उस वक्त आना था जब हुसैन का सीना तीरों और तलवारों से छनी हुआ था। आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब मेरे भाई के गले में तीर फंसा हुआ था? मेरे बाबा मैं तो उस वक्त भी आपको बुलाती रही कि या मदद। अब्बा जान आवाज आई, बेटी हम उस वक्त भी आए थे, तुम्हारी अम्मी साथ थी और तुम्हारे नाना भी साथ थे। हमने तुम्हारा पूरा इम्तिहान अपनी आंखों से देखा। तुम्हारे नाना शहीदों के खून को बोतल में जमा करते रहे। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मेरे बेटे हुसैन ने वैसा ही इम्तिहान लिया जैसा उसके नाना हुजूर चाहते थे। तुम्हारी अम्मी अपनी कुर्बानियों से पूरी तरह मुतमिन है। तुम्हारे भाई और भतीजे जन्नत में पहुंच चुके हैं और वहां आराम कर रहे हैं। ऐ मेरे लखते जिगर, तुम्हारा इम्तिहान अभी बाकी है। तुम बनते रसूल के दूध की लाज रखोगी, सब्र और शुक्र से रहना। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर आवाज आना बंद हो गई। बीवी सकीना के दिल को काफी इत्मीनान हासिल हो गया था। सुबह हुई और अहले बैत को कोफा ले जाया जा रहा था तो बीबी ज़ैनब ने मदीना की तरफ रुख करके इस तरफ फरियाद की कि सुनने वालों के सीने चाक हो गए। यजीदी लश्कर ने बीबियों को कैद कर लिया और उन्हें पैदल ही सड़कों पर चलाया ताकि लोग इबरत हासिल करें। इस मजलूम काफिले को कोफा ले जाया गया और वहां दरबार यजीद में पेश किया गया। इस वक्त एक औरत यजीद की बीवी हिंद के पास आई और कहने लगी, ए हिंद, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, उन्हें देखकर दिल दहल जाता है। वह उठी और उसने उम्दा लिबास पहना, अपनी चादर ओढ़ी और वहीं पर आकर बीबी ज़ैनब ने जब उसे गौर से देखा तो उसे पहचान लिया और अपनी बहन धूम से कहा, बहन क्या तुम इस औरत को जानती हो? धूम ने जवाब दिया, नहीं मैं इसे नहीं पहचानती। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, ये हमारी कनीज हिंद बिनती अब्दुल्ला है जो हमारे घर में कामकाज किया करती थी। हिंद ने बीबी ज़ैनब से पूछा, आप लोग किस इलाके से हैं बीबी? ज़ैनब ने फरमाया, हम मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं। जब हिंद ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और इज्जत में खड़ी हो गई और पूछने लगी, क्या आप मदीना वालों को जानती हैं? बीबी ज़ैनब ने फरमाया, तुम किन मदीना वालों के बारे में पूछ रही हो? हिंद ने कहा, मैं अपने आका मौलाना इमाम अली अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों के बारे में पूछना चाहती हूं। बीबी ज़ैनब ने अखबार आंखों से फरमाया, तुमने अली अलैहिस्सलाम के घर के बारे में पूछा है? अब इस घर को खाली छोड़ आए हो तुमने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पूछा है। तो यह देखो,
तुम्हारे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तुम्हारे शौहर यजीद के सामने रखा है। तुमने औलाद अली के बारे में पूछा है तो हम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और बाकी सारे नौजवानों को करबला के तपते रेगिस्तान में बेगुसल और बिना कफन छोड़ आए हैं। और तुमने जैनब के बारे में पूछा है, मैं जैनब हूं। और यह मेरी बहन बीवी जैनब की यह बातें सुनकर हिंद की चीख निकल गई और वह सीने पर हाथ मारकर कहने लगी, हाय मेरी आका जातियों को क्या हो गया। काश मैं अंधी हो जाती और फातिमा की बेटियों को इस हाल में ना देखती। हिंद उठी और अपनी चादर उतारकर यजीद के सामने आई। यजीद उस वक्त बाहर से आए हुए कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था। उसने यजीद को इस हालत में देखा और फौरन उठ खड़ा हुआ और भरे दरबार में उसका नग्न सर देखकर गजब में आ गया और अपनी बीवी को चादर पहनाई और कहने लगा, हाँ, मैंने ही हुक्म दिया था। अब तू नवासा रसूल पर मातम करना चाहती है तो बेशक कर। लेकिन जब यजीद ने मकर और गरीब से उतरते हुए उसकी बीवी को चादर उड़ाई तो हिंद ने कहा, ए यजीद, खुदा तुझे तबाह करे। अपनी बीवी को दरबार में नंगा सर देखकर तेरी गैरत जाग उठी, लेकिन तू रसूल जादियों को सलाम और सारे नग्न बाजारों और गलियों कोचों से भर कर ले आया है। इस वक्त के लिए गैरत कहां मर गई थी। अहले बैत को शाम की जेल में कैद कर दिया गया। सलाम हो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सलाम हो अहले रसूल के खानदान पर जिन्होंने इस्लाम की खातिर इतनी कुर्बानियां दी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को वाकया करबला मालूम हो सके कि हमारे नबी के खानदान ने इस दीन इस्लाम की खातिर क्या क्या कुर्बानियां दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल दिन की खिदमत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।